I will be taking that initial few minutes for explaining the orientation of this crash course. It is basically a combination of some live lecture as well as some pre-recorded lectures to be completed in a stipulated time of 3 months. So the main feature of this course will be basically, it is not a compromise course in the sense that we are not explaining lesser content. Full syllabus will be covered. We are able to cover it in the 3 months because of that combination, that is hybrid mode in the sense more than 50% lecture will be on the current or live, and remaining lecture will be in the pre-recorded format. Live lecture की category में we are taking the important one like General Economics 1 completely, General Economics 2 majorly. Majorly I will explain in detail what are the major. When I say majorly I will explain, that means which content will cover in the live and which content will be provided in the form of recorded form. Then it will be including a test series which will have 14 tests in total for General Economics 1, 2, 3 and Indian Economy 3 each, and for GS and English 1 each, starting from 4th of February. Your exam is obviously scheduled in the last week of June, and study material will be provided in the soft copy form, and obviously interview will come later on, but we'll talk about it later. The main point that I have to explain here is in this crash course, starting from General Economics 1 part. As you know, General Economics 1 will have 2 sections. Syllabus के accordingly, question के accordingly 3 section. Syllabus के accordingly it is divided basically into the micro part and the maths and econometrics part. You can see it here. Your G1 syllabus is basically part 1 is your micro. Micro include theory of consumer demand. It include theory of production, theory of value, theory of distribution and welfare economics. So 5 sub part within the micro. And the second part is basically mathematical methods in economics, stats and the econometrics methods. So you can broadly call it the econometrics lecture. So second part, but equal division नहीं होता. It is not perfectly balanced paper होता है कि 100 marks ये है 100 marks ये है. Suppose if you have some advantage in mathematical approach, some student may have disadvantage in the mathematical approach. दोनों के लिए पेपर है वो. If you have better advantage in the micro part, attempt more question from the micro. Reduce your dependency for econometrics. If you are feeling more confident in econometrics, attempt more question from econometrics section and less number of question from the micro section. Because 200 marks का पेपर आपको attempt करना है. You are attempting 200 marks, but पेपर कितने का होता है? G1. जो number of question है वो कितने के हैं? कभी देखा है? Out of how many you attempt 200? It is exactly 286. I will explain that. एक पेपर आप देख लो उससे आइडिया लग जाएगा. फॉर ये आपका G1 का पेपर है करंट ईयर का 2023 अगर आपने एग्ज़ाम दिया इस पर. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन विल हैव 7 पार्ट्स. ये तो कंपल्सरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास. सो 35 मार्क्स हेयर. सेकेंड, any 5 out of 7 and each question of 18 marks. तो 18 into 7 126 का होता है. Out of that 126 you attempt 19. 2 ऑप्शन है आपके पास. Then third section of you are attempting 3 out of 5. हर क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं तो 125 ये है. Out of 125 you attempt 75. तो ये 125, 126 और 35 मार्क्स, ये 281 या 86 हो गए आपके. तो आउट ऑफ दैट यू आर अटेम्प्टिंग बेसिकली 200 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन. इवन इन सेक्शन सी जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें अगर एक क्वेश्चन आपका ये कम्प्लीटली इकोनॉमेट्रिक्स वाले सेक्शन का है. सपोज अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन. बट अगर आपने इकोनॉमेट्रिक्स कम पढ़ रखा है, उस पर लेस इंपॉर्टेंस दे रखा है, तो यू हैव द ऑप्शन टू लीव दैट क्वेश्चन. ठीक है, आपने उस कम्प्लीटली उस क्वेश्चन को छोड़ दिया.
सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये अनएक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन आया, ऑल्दो सिलेबस में लिखा हुआ, बट यूजुअली क्वेश्चन PYQ में नहीं रहते थे, इसलिए स्टूडेंट प्रिपेयर करके नहीं गए। तो बट क्वेश्चन की डिफिकल्टी नहीं है, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू नो जस्ट द फॉर्मूला। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी इकोनॉमेट्रिक्स वाला पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फिर माइक्रो का पार्ट हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर माइक्रो का पार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन ईजी है, शो दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव बाय यूजिंग द WARP अप्रोच, वीक एक्सिम ऑफ रियल प्रेफरेंस। ये थ्योरेटिकल और ये कैलकुलेशन है, ईजी क्वेश्चन है। तो अगर हमने वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 स्किप किया है, माइक्रो बेटर है, बेटर इन द सेंस बेसिक भी अगर कवर करके गए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। So basically you have to choose your question according to your advantage and don't try to convert your weakness into advantage in the next few month, वो नहीं हो पाएगा। अगर वो वीक आज की डेट में है तो उसे उस वीक कैटेगरी में रहने दो, आपके सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसका। बट अगर आप अपने वीकनेस को एडवांटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। डिस्पाइट दैट, वो करने के बावजूद ये कंफर्म नहीं है कि वो आपका वीकनेस एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर वो इनबिल्ट है, नहीं हो रहा है, अप्रोच नहीं है हमारा मैथमेटिकल सॉल्व करने का, तो आपने प्रैक्टिस कर भी लिया होगा, फिर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, यू विल फील लेस कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट और गो फॉर दैट क्वेश्चन, यू विल ऑलवेज गो फॉर द थ्योरेटिकल वन। सो सेक्शन सी एज वेल एज सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वीकली सेपरेबल एंड वीकली एडिटिव यूटिलिटी फंक्शन। A production function shows constant returns to scale can follow diminishing return to a factor justify with logic। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं करना है, रीजनिंग देनी है। You have to explain with a reasoning। Define the concept of technological efficiency as proposed by Farrell। अब ये क्वेश्चन जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो गया, तो रिमेंबर अब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लोइटेशन एंड डिटरमाइनिंग वेज रेट अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और डिफिकल्टी भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेड यूनियन हैव अ रोल इन रिड्यूसिंग द मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लोइटेशन बट नॉट मोनोपोलिस्टिक, दैट मीन्स यूनियन कैन एलिमिनेट monosonistic exploitation but they cannot eliminate monopolistic exploitation। You have to explain it by obviously by using diagram, explain it how a monopolist determine the wage, how union can eliminate that monopolistic exploitation, what is the meaning of monopolistic exploitation, what is the Robinson view regarding that। तो अगर वो चीज़ें आपको याद है, वो ऑब्वियसली क्लास के अंदर कंटेंट के अंदर वो कवर्ड होगा। सो यू हैव टू रिप्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यूज और चूज क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एडवांटेज। सो इफ अगेन आई रिपीट, अगर आपका कोर एडवांटेज इस सेक्शन में नहीं है, इससे कोई इशू नहीं हो रहा, बिकॉज आप इक्वल वेटेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। एट द मैक्सिमम यहाँ से अटेम्प्ट अगर करने को हो सकता है तो वी कैन से 50 to 60 मार्क्स, यू कैन चूज मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। और अगर ये वीक है, यू कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन हियर एंड लेस क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ठीक है। देन तो we will be trying to complete G1 in the live lectures। So starting from today we will be starting with the econometrics part in the second lecture। The first lecture will be starting with the G2 and within G2 you can see 8 parts, but obviously हर part का equal weightage नहीं होगा, वो topic wise question से clear हो जाता है। Like it include economic thought, concept of national income and social accounting। Third part is again important, this is basically your macroeconomics, theory of employment, output, inflation, money and finance, that will include classical ISLM topic, crowding out, liquidity trap, monetary policy, fiscal policy, transmission mechanism। So this is a major part। Financial and capital market will be a small part, means जो 5 marks के question होते हैं start में, expect one question there कि what is the difference between futures and options, उस तरीके के question हो गए। तो वो एग्जैक्टली अगर आपको मालूम है एग्जैक्टली उसको वहाँ लिख देना, बट उसमें कोई ग्रेटर वेटेज का क्वेश्चन नहीं हो रहा। लाइक डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑफ 18 मार्क्स और 20 मार्क्स फ्रॉम दैट सेक्शन, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी अगेन अ मेजर पार्ट। इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लब कर लीजिए, कंसीडर्ड इट एज अ सिंगल यूनिट ऑल्दो इट इज रिटन इन 2 सेपरेट पार्ट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विल बेसिकली डील विथ theories of trade, first section, and balance of payment part is basically the BOP and the foreign exchange rate।
इसका अप्रोच माइक्रो होगा और बीओपी का अप्रोच मैक्रो है. सो इंटरनेशनल इज बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट. तो वन पार्ट विल बी बेसिकली द माइक्रो थियरीज and second part will be the balance of payment. So in the first lecture we will be starting basically with the international or balance of payment and then the global institutions. Global institutions में IMF, World Bank, उनके रोल और उसका जो रेलिवेंस आज की डेट में वो एक्सप्लेन करना है. Now this क्वेश्चन के फॉर्मेट में पहले से देख लीजिए. ये टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक मैं अभी शो कर रहा था वो टॉपिक वाइज यहाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेपरेटेड. सो जस्ट फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेक्शन लास्ट ईयर 23 के क्वेश्चन में एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवर्सली. ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिफाइन करना है मल्टीप्लायर, डिराइव करना है और इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है. और then you have to explain what will be the impact on the GDP when the exports will rise by 200 crores. So you have to explain that concept, derive the multiplier formula and calculate it. So your theoretical part, application part as well as the calculation part, all three. Then state and explain the HO theory and comment on its applicability in the presence of factor intensity reversal. तो HO theory का question regularly है, उससे HO थ्योरी और जो कोरिलेट्स है, कोरिलेट्स लाइक स्टॉपलेस समल्सन. अब ये क्वेश्चन अगर आप पास पेपर के अंदर देखो तो यू विल फाइंड दैट मल्टीपल टाइम्स, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द रिकार्डियन थ्योरी, HO थ्योरी, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, न्यू थ्योरीज ऑफ ट्रेड, ये सारे क्वेश्चन बेसिकली इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर है. अब ये क्वेश्चन HO थ्योरी का अगर यहाँ पे 23 के अंदर है तो 21 के अंदर भी वही क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन HO थ्योरी एंड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम. तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी नहीं है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू मस्ट हैव अ वेल प्रिपेयर्ड रिटन नोट्स, और वो रिटन नोट्स आपने 2-3 बार लिख रखा हो, एक बार नहीं, सिर्फ क्लास के अंदर. एक बार क्लास के अंदर आप लिखोगे, सेकेंड टाइम जब आप डेली आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिखना है, थर्ड टाइम आप टेस्ट अपेयर करेंगे तो लिखेंगे, फोर्थ टाइम आप आंसर लिखोगे फाइनल, ओनली देन एग्जैक्टनेस विल कम. तो 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस चाहिए बेसिकली फॉर दिस टाइप ऑफ रेगुलर क्वेश्चन. पास्ट ईयर क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, किसी भी सेट को अगर आप देखेंगे मोर देन 50% क्वेश्चन इज एग्जैक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अब ये फैक्टर प्राइस इक्वेशन का क्वेश्चन यहाँ देख लो. उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 अगेन स्टॉपलेस समल्सन थ्योरम फॉलोज HO थ्योरम ऑफ ट्रेड. देन अगेन HO मॉडल, explain HO model, highlight some of the shortcomings, Stokes Samuelson theorem, again Stokes Samuelson theorem. तो आप क्वेश्चन, अगर आपको सबसे पहला काम है किसी भी टॉपिक को बिगिन करने से पहले गो बाय द क्वेश्चन. क्वेश्चन विल गिव यू एन आइडिया व्हाट इज द वेटेज ऑफ दैट टॉपिक. आई सेड इंटरनेशनल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्लब कर लिया, तो फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेक्शन यू विल सी 23 के क्वेश्चन के अंदर 1, 2 and 3 ये 3 क्वेश्चन है, और ये कंपल्सिव पहले वाले क्वेश्चन के अंदर नहीं होता, 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन बेसिकली 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर है. ठीक है, 15 के हैं या 20 के हैं. इसको मैं कह रहा हूँ कि आप ऐड कर दो इस टॉपिक को विद बैलेंस ऑफ पेमेंट सेक्शन. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सेक्शन से अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सेक्शन से अगेन यू फाइंड 1 क्वेश्चन हियर, तो 4 क्वेश्चन हो गए. इनफैक्ट 4 क्वेश्चन का मतलब अगर ये 15 मार्क्स की कैटेगरी के अंदर है तो भी स्टिल 60 मार्क्स का टॉपिक हो गया. वी आर अटेम्प्टिंग 60 मार्क्स फ्रॉम बेसिकली इंटरनेशनल ओनली. इंटरनेशनल इंक्लूड ऑटोमेटिकली द BOP सेक्शन. ठीक है, उसको आप 1 सेपरेट नहीं करना, इट इज़ बेसिकली 1. सो 60 to 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा इट विल बी बेसिकली कमिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सेक्शन. सो दैट गिव्स द वेटेज ऑफ दैट टॉपिक. देन the third topic is global institution. Global institution say again you get 2 question last year. Discuss the role of World Bank in fighting global poverty. What are the important causes and consequences of global financial crisis of 2008? ये क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइम नहीं आ रखा, ये पहले भी आ रखा क्वेश्चन. 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के रीज़न और उसके इफेक्ट. तो इफ़ यू ऐड ऑल 3
इंटरनेशनल, BOP एंड ग्लोबल। तो यू फाइंड बेसिकली 5 क्वेश्चन, तो 4 to 5 क्वेश्चन नेसेसरली वहाँ से मिल जाना है। दैट मीन्स 60 to 90 मार्क्स के क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल सेक्शन। Then the other important part will be this macro. This is your macroeconomics mainly. From macroeconomics section you get 1, 2 and 3. Question का nature: what do the Keynesian monetarists and rational expectation theorists differ in their views regarding trade-off between inflation and unemployment? तो inflation और unemployment का trade-off है, popularly known as the Phillips curve. But वहाँ पे अलग अलग views हैं। फिलिप्स कर्व कैन बी नेगेटिव स्लोप, लॉन्ग रन के अंदर वो वर्टिकल भी हो जाता है। तो अलग अलग व्यूज़ है एक्सप्रेस बाय डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। हाउ इज द लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली इन द केनीशियन ISLM मॉडल? अब ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि ISLM मॉडल के इंटरसेक्शन से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है, बट व्हाट टू एक्सप्लेन इन दैट? वो तो सिंपल हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ IS कर्व रिपेंड गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, LM कर्व रिपेंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। So how that interest rate and income is being determined by the intersection of IS and LM curve? तो आपने IS और LM कर्व तो एक्चुअल में वहाँ ड्रॉ कर देंगे। स्कोर करने के लिए क्या करना है? यू हैव टू बेसिकली एक्सप्लेन द डिसइक्विलिब्रियम पार्ट फर्स्ट। व्हाट हैपेंस इन जोन 1, व्हाट हैपेंस इन जोन 2, व्हाट हैपेंस इन जोन 3, व्हाट हैपेंस इन जोन 4? Obviously if I point anywhere, these are the 4 different zone of disequilibrium. So from that zone of disequilibrium, economy will move towards equilibrium. What will be the path of adjustment? You are explaining that part to get marks because that is expected. Equilibrium explain करने का मतलब actual में होता है you have to explain what? Disequilibrium. Explain the disequilibrium. That if goods market is not in equilibrium, then what will happen? If money market is not in equilibrium, then what will happen? If both markets are not in equilibrium, then what will happen? And how they will attain इक्विलिब्रियम? तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली हो गया। हाउ इज द टॉबिन्स पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच इंप्रूवमेंट ओवर केनीशियन रेग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल? तो डिमांड फॉर मनी वाले कैटेगरी के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होती। तो 3 क्वेश्चन बेसिकली यू गेट फ्रॉम, यूजुअली 2 to 3 क्वेश्चन आपको मैक्रो के सेक्शन से मिलेगा। तो इफ आई चूज इंटरनेशनल एज वन एंड मैक्रो एज द अदर इंपॉर्टेंट मेजर वन, and third you can choose important one is the growth and development, economic growth and development। ठीक है, ये एक आपका मेजर एरिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल इंक्लूड 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 6 to 7 क्वेश्चन बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैटेगरी से। पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन रहते हैं? G1 का पैटर्न अलग होता है, बट 2 और 3 का पैटर्न अलग हो जाता है। 2 और 3 का पैटर्न डिफरेंट है। 2 और 3 के पैटर्न में ये फर्स्ट पेपर हो गया, ये सेकंड पेपर अगर आप देखो 2023 का G2, तो G2 के अंदर आपके 6 फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन में 6 पार्ट ही होते हैं, वहाँ 7 थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है 6 out of 9, 6 out of 9 करने। ठीक है, 15 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। यूजुअली यहाँ पे सब पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ सब पार्ट्स नहीं है, सिंगल क्वेश्चन है। और G1 के अंदर यूजुअली हर क्वेश्चन के A और B पार्ट है, A B, और थर्ड सेक्शन के अंदर C पार्ट भी है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर हमने कुछ मेजर एरियाज कवर कर लिया, आई कम टू द एग्जामिनेशन स्टडी, आई हैव कवर्ड सम बेसिक एरियाज, आई हैव नॉट कवर्ड द 100% G2, but I have covered international, balance of payment, growth and development and macro. These are the 4 syllabus के अंदर 8 टॉपिक है, हमने ये 4 एरिया कवर कर रखा। यू कैन अटेम्प्ट मेजरली क्वेश्चन। ठीक है, और इनके वेटेज भी ज़्यादा होते हैं एक्चुअल में, क्वेश्चन के अंदर वेटेज भी ज़्यादा है। एंड इफ़ यू गो बाय दी अदर स्मॉलर टॉपिक मीन्स फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट के अंदर व्हाट आर द कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, बट 5 मार्क्स में यू कैन स्कोर 3 or 3.5 प्रोवाइडेड यू राइट वेरी एग्जैक्ट what are basically forwards and what are basically futures contract, defined as explained or defined in the core book,
मतलब बुकिश लैंग्वेज प्रेफर्ड है, डोंट यूज़ योर ओन वर्ड्स, कम यूज़ करने उसे। इस तरीके के पेपर में जितना ज़्यादा आप बुकिश लैंग्वेज रिप्रोड्यूस करोगे, यूपीएससी प्रेफर दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज कि डायरेक्टली हमने कस्टम यूनियन पूछा गया, साल्वाटोर में जो लिखा था वर्ड टू वर्ड वहाँ लिख दिया। एक होता है कि हमें आइडिया आ गया, आइडिया रिटेन हमने कर लिया और एक्सप्लेन करते समय अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस कर दिया, ऑल्दो दैट इज़ अ बेटर वे बट अनफॉर्चुनेटली नॉट रिवॉर्डेड। ठीक है, रिवॉर्ड वही होता है जब आप उसको एक तरीके से याद करके लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया, हाउ डू यू मेजर द फाइनेंशियल मार्केट एफिशिएंसी। तो ये शॉर्टर क्वेश्चन है, ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा। जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आइडिया लगेगा। ये लास्ट 15 ईयर का क्वेश्चन बेसिकली ये हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अराउंड 28 मिले, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम होना। वही वेटेज नेशनल इनकम अकाउंटिंग का होगा। एंड सिमिलरली वन स्मॉल टॉपिक इज इकोनॉमिक थॉट। शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली जितने भी क्वेश्चन ऊपर वाले दिख रहे हैं ये एक्चुअल में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर है। दैट मीन्स यू कांट लीव, बट उसमें टाइम कम लगना है आपको, मैं ये कह रहा हूँ। दिस इकोनॉमिक थॉट को हार्डली आप 1 डे भी अगर एलोकेट कर दो, 5 to 6 आवर भी आपने पढ़ लिया तो यू आर एबल टू कवर ऑल। बट 5 to 6 आवर के अंदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कवर नहीं होता। क्लियर? तो टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन आपको यहाँ से रेफर करना है। सपोज यू इफ यू स्टार्ट विथ एनी टॉपिक्स, इंटरनेशनल से बिगिन किया तो फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर, वो आप कंप्लीटली प्रिपेयर करोगे। एंड अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू हैव टाइम, तो इस क्वेश्चन के अलावा जैसे इंटरनेशनल का आपने ये क्वेश्चन ये किया, इस क्वेश्चन के अलावा सिविल सर्विस इकोनॉमिक्स ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, बिकॉज कंटेंट सेम है। तो पूल ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बड़ा हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको और ये इंटरचेंज होते रहते हैं। वहाँ के क्वेश्चन देखो, जस्ट गिव 10 to 15 मिनट्स। अगर आप कोई टॉपिक बिगिन कर रहे हैं, सी बोथ द क्वेश्चन, जस्ट यू विल फाइंड हाउ मच परसेंटेज इज सेम, और सेम क्वेश्चन भी है। तो आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन जब नए, रिमेंबर एक इशू होता है व्हेन योर प्रिपरेशन इज़ PYQ बेस्ड। तो अगर इकोनॉमिक सर्विस का पेपर देख रहे हैं, आपने इकोनॉमिक सर्विस के सारे पास्ट के क्वेश्चन कर लिए, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर एरर इन दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन, मिस्टेक क्या हो सकता है। जैसे इस साल हो गए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया नहीं था, वो नहीं आया था, हमारा प्रिपरेशन का बेसिस ही PYQ था, हमने वही पढ़ा था जो पास्ट में आ रहा था। तो पास्ट पे अगर हमेशा एक्सपेक्टेशन होगा फ्यूचर का, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ एडेप्टिव इज दैट देयर विल बी सम सिस्टमैटिक एरर। तो आवर प्रिपरेशन शुड बी रैशनल। Rational it means PYQ will have a weightage, but there will be some new question also. तो वो न्यू क्वेश्चन हम कहाँ से कवर करेंगे? डोमेन में अवेलेबल है, यूपीएससी को ही दोनों एग्जाम लेने हैं, तो आपके पास ये एडिशनल क्वेश्चन है। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस इकोनॉमिक्स ऑप्शन के अंदर पूछा गया, ये इम्पोर्ट कोटा का क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल है। आप ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्विस में अभी तक नहीं आया हुआ है, बट इस साल यहाँ आ गया। हो सकता है 24 के इकोनॉमिक सर्विस में सेम क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट करके। तो वो क्वेश्चन भी वहाँ नहीं आता था, बिकॉज ये सिविल सर्विस के इकोनॉमिक्स ऑप्शन में भी कभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, बट वो न्यूमेरिकल इंपोर्ट कोटा का भी था और इंपोर्ट टैरिफ का भी था। 2 क्वेश्चन बेसिकली है इसके अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर। नाउ इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और पेपर के अंदर वो आ जाता है, तो यू आर, बिकॉज थ्योरेटिकली यू कैन एक्सप्लेन, आपको इंपोर्ट कोटा क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, यू कैन एक्सप्लेन दैट। हमने अप्रोच में वही पढ़ा है। तो हमें we have to prepare from theoretical point of view as well as the numerical point of view, जहाँ जहाँ numerical बनते हैं, ठीक है, और जहाँ क्वेश्चन में पूछ लिए गए, नहीं पूछे गए थे, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा है, बट सिंस वो अब आपको मालूम है कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड ऑलरेडी, सो इफ दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर इट। सो जस्ट कवर बोथ, ऑल्दो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बढ़ जाएंगे, बट बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन याद रखिएगा। इट इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट नहीं है, ये वो कॉम्बिनेशन है, मेजरली सेम होते जाएंगे क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे। लाइक ये क्वेश्चन एक 2023 से आता, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, सब में बस एक फार्मूला है,
फॉर्मूला याद है, उसको लेस लिख देना था और वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेट कर देना था। क्लियर? तो दिस इज वन। देन सेकेंड पार्ट इज, तो G1 में वैसे आपको G3 के लिए और इंडियन इकॉनमी के लिए। G2 आपका मेन है, इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है। सो कवर्ड विल स्टार्ट विद द इंटरनेशनल एंड BOP विल कवर इन द लाइव। थर्ड पेपर के अंदर रिलेटिवली कंटेंट स्लाइटली कम है, इन द सेंस इट इंक्लूड पब्लिक फाइनेंस, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, बिकॉज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से ये एक्चुअली इट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, इट इज़ मेजरली कवर इन G1 ऑल्सो, ओवरलैपिंग है ये। तो G1 के अंदर भी क्वेश्चन आता है कॉर्नेट मॉडल, बर्टन मॉडल का, और G3 के अंदर भी कॉर्नेट बर्टन मॉडल का क्वेश्चन आ जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के क्वेश्चन हो गए। सो इट इज़ बेसिकली माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर, and state market and planning can be covered as a growth and development also. So relatively lesser content in G3, but you have again more content in Indian economy section. So Indian economy again divided into 11 parts, but again go by the question, topic wise सारे question आपको मिलेंगे। जो important topics हैं, important topics in the sense the way of preparation could be, if I cover all question related to industry in 2 or 3 days, next 2 or 3 days prepare all question related to the agriculture, allocate next 2 or 3 days to attempt or prepare all question related to public finance, then question related to the external sector, then question on the inflation, urbanization, migration, or all club all issues or all problems together, unemployment, poverty, inequality, demography, ये सारे को आप एक साथ कवर कर लो हार्डली 2 or 3 days, मतलब allocate 2 or 3 days for each topic जो frequently क्वेश्चन में आ रहा है। एंड ऑब्वियसली GS और इंग्लिश, अब एक स्टडी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कि आप स्कोर करो। वहाँ पे स्कोर करने के लिए आप जस्ट अ फेयर आइडिया कि आप जो एग्जामिनेशन अप्रोच कर रहे हो उसमें क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, और एटलीस्ट क्या आप स्कोर करो। अकॉर्डिंग टू मी कोई एक पेपर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज का पेपर होना चाहिए आउट ऑफ 4 इकोनॉमिक्स पेपर में कह रहा हूँ, आउट ऑफ 4 इकोनॉमिक्स पेपर कोई एक पेपर कंपैरेटिव एडवांटेज इन द सेंस इन दैट पेपर यू मस्ट स्कोर मोर देन 110, इन वन पेपर स्कोर एटलीस्ट 110 और मोर देन 110। 2 पेपर, अब वो 1 पेपर आपका G1 भी हो सकता है इफ़ यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन द प्रैक्टिकल साइड, इट कुड बी G2, इट कुड बी G3 और इट कुड बी इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी में वैसे एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, नंबर मिलते नहीं वहाँ पे। तो G1, 2 और 3 इन तीनों में किसी एक पेपर जो आपका एडवांटेज है उसी को आपको मैक्सिमाइज करो, ठीक है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि यू हैव मोर कॉन्फिडेंट इन G2 और 3 और 1, ट्राई टू स्कोर अराउंड 110 और प्लस। 2 पेपर कोई ऐसे होने चाहिए जिसमें 180 मतलब 45% का स्कोर किया आपने, 19 टोटल लिखा मैंने, इट कुड बी 95 एंड 85, बट 2 पेपर आपके बैलेंसेस फॉर्म में होने चाहिए, 180 का स्कोर हो। और कोई भी ऐसा पेपर ना हो जिसमें 80 से कम जाए। जो आपका डिफ़िकल्ट पेपर है उसमें भी आपको एटलीस्ट 80 स्कोर किया। एंड GS एंड इंग्लिश कंबाइंड आई एम राइटिंग 90, दैट इज़ 45%, ठीक है। यू मे स्कोर मोर इन 1 लेस इन 1 बट ट्राई टू स्कोर अराउंड 90। तो इससे आपका ये स्कोर 460 आता है, गुड इनफ टू गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, नॉट गुड इनफ टू बी सेलेक्टेड, बट एटलीस्ट ये स्टेज तो क्लियर कर जाओगे। ये मैंने वो मिनिमम लिखा है। अब यहाँ से अगर आप इंटरव्यू में डिसेंट स्कोर कर लेते हो, डिसेंट स्कोर का मतलब एज़ कम्पेयर टू द रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू के अंदर UPSC में मार्क्स देने की टेंडेंसी होती है। जैसे यहाँ पे स्कोर अराउंड 40 to 50% के बीच होता है, इंटरव्यू में वो उसको 60 प्लस चला जाता है। मतलब इन इंटरव्यू दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव मोर मार्क्स। तो मोर मार्क्स का मतलब अगर 120 या 130 का स्कोर एक डिसेंट स्कोर है, 130 के आसपास का स्कोर, 130 का स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। रीज़न
ये कट ऑफ आप लास्ट ईयर का देख लो, और ये कट ऑफ बढ़े नहीं रहे हैं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। लास्ट 2-3 ईयर्स से ये कट ऑफ एक्चुअल में डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। दैट मीन्स दिस इज़ फॉर, ये यूपीएससी साइट पे अवेलेबल है। 22 का कट ऑफ है फॉर द जनरल कैटेगरी। फॉर द जनरल कैटेगरी इट वॉज 418 आउट ऑफ 1000। आउट ऑफ 1000 आई सेड 418, बट जस्ट 420 430 अगर किसी का स्कोर है तो इंटरव्यू कॉल तो मिल जाएगा। बट फाइनल कट ऑफ गया 585, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपने कैटेगरी में कट ऑफ से अराउंड 40 to 50 मार्क्स ऊपर रहना। जस्ट कट ऑफ मीट आउट करोगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आई सेड 480, स्कोर यहाँ कह रहा 460 कह रहा हूँ। तो 460 अगर ये कट ऑफ, लाइक इस साल का भी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, कुछ दिन में जैसे फाइनल आ जाएगा मार्क्स भी आ जाएंगे। आई होप जो गिवन क्वेश्चन का नेचर था, ये कट ऑफ बढ़ेगा नहीं। ये 418 है, अराउंड रह सकता है, ऑल्दो नंबर ऑफ सीट्स कम है। लास्ट ईयर इट वाज फॉर, सीट्स लिखे हुए थे यहाँ पे 24 के लिए था, इस बार 18 के लिए हुआ है। ठीक है, तो सीट्स कम है तो अराउंड सेम रहनी चाहिए। अगर सीट्स भी घट गए और कट ऑफ भी घट गए इन केस, तो उसका मतलब ये स्कोर और भी नीचे ही जा रहा है, और वो ट्रेंड एक्चुअल में चल रहा है। ये 418 था, लास्ट 2-3 ईयर का देखो वो अराउंड 460 467 के आसपास था। 467 से 430 में आ गया, 418 में आ गया। बट वाई स्कोर इज डिक्लाइनिंग डिस्पाइट लेस नंबर ऑफ सीट्स, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाई स्टूडेंट्स आर अनएबल टू स्कोर इवन 45% एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर 42%। अब इंटरव्यू कॉल मतलब लेटेस्ट अगर 50 स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉल किया, मतलब ओनली 50 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में या ओवरऑल मिला करके जिनका स्कोर इससे ज़्यादा है। और कैटेगरी वाइज अगर आप देखो तो EWS के लिए वो कट ऑफ 359 है, OBC के लिए 363 है। तो आप अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी के का जो कट ऑफ है उससे 50 मार्क्स एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 50 मार्क्स एक्स्ट्रा अगर आप रखते हो तो इन दैट केस, जैसे यहाँ 50 मार्क्स मैंने इसमें ऐड कर लिया, 418 है, अगर किसी का 468 है तो 468 होगा तो फिर ये इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, फिर 125 130 का स्कोर जो इंटरव्यू में आ जाएगा, फिर देन इट बिकम्स इजी फॉर यू। तो कट ऑफ से 50 to 60 मार्क्स ऊपर रहना। कट ऑफ ये बढ़ेगा नहीं, याद रखिएगा, सडनली कभी जंप नहीं होता। ये नहीं कि स्टार्ट आपके ईयर में वो जंप करके 550 हो गया, इट इज़ अनलाइकली। ठीक है, वो नहीं होता। सो दैट मीन्स योर एम इज़ वेरी क्लियर, ऑब्जेक्टिव इज़ क्लियर, हाउ मच यू हैव टू स्कोर अराउंड 47-48% एट द मैक्सिमम 50। अब 50% स्कोर करने के लिए ऑब्वियसली 100% सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे किसी वजह से 10% 15% सिलेबस मेरा रह जाता है, उससे आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वो 10% नहीं पढ़ा था, वो नहीं रीज़न है। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो आपने पढ़ा था उसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, वो रीज़न है। नहीं पढ़ना वो रीज़न नहीं है, क्योंकि सबके छूटते हैं। वो ट्रेंड इसलिए होता है, लो स्कोरिंग एग्जाम इसलिए है। कंटेंट इज़ वेरी वाइड, वे ऑफ मार्किंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। If they are satisfied, even then they have instruction don't give more than 60%. If they are satisfied, obviously you can't satisfy them. So your answer is always less than perfect. Since it is always less than perfect, expect a score in the range of 45 to 55%. In that range, if you are writing good. So but to score that 45 to 55, you have to be very effective, and effectiveness will come only with the practice. And third thing is the nature of exam. फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में आपको 18 घंटे लिखने हैं। नो टाइम टू रिकॉल, नो टाइम फॉर रिविज़न। अब विदाउट रिविज़न स्टूडेंट वही लिख सकता है जिसने थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखा होगा, सो दैट लास्ट में नहीं भी किया तो वो लिख लेगा। ठीक है, सो देर आर सर्टेन रीजन्स फॉर इट। तो कट ऑफ ये अवेलेबल है, फ्यू डेज में आपको 23 का कट ऑफ मिल जाएगा। यू विल हैव अ मोर बेटर आइडिया फॉर द प्रिपरेशन। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल। ठीक है, इसको आप एम करके चलो, किसी एक पेपर को अपना एडवांटेज बनाना है, वो पेपर आपके लिए कोई भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट चूज़ योर ओन स्टडी, हर स्टूडेंट की अपनी स्टडी होगी।
टेस्ट के रिगार्डिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सो आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड ऑल related to this crash course. रिमेंबर अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स टाई हो जाते हैं, मार्क्स अगर टाई हो गया तो आप ये मैटर करेगा. फिर इकोनॉमिक्स में कितना स्कोर किया आपने, फिर जीएस और इंग्लिश मैटर नहीं करेगा. एग्रीगेट अगर टाई हो गया तो हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन इकोनॉमिक्स पेपर, ये मैटर करता है. क्लियर? एन इंटरव्यू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं. नथिंग. सेक्शनल डज नॉट मैटर. ये सेक्शनल डज नॉट मैटर, एग्रीगेट मैटर करेगा कि इकोनॉमिक्स के जो 800 मार्क्स हैं उसमें किस कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा रहा. बिकॉज सीट्स कम है, ये भी होते हैं वहाँ पे. समटाइम्स लगता है कि इक्वल प्रिपरेशन था, सब कुछ ठीक था, बट क्यों नहीं हुआ. वो तो आपका भी रहा था, एग्रीगेट में बराबर ही थे, बट यहाँ पे डिफरेंस हो गया. ठीक है. प्लस इंटरव्यू भी रहता है, मतलब वो जीएस और इंग्लिश वाला पार्ट फिर सेपरेट हो जाता है. वो आपके सेक्शन या एग्रीगेट जब टाई होता है फिर मैटर नहीं करता. यहाँ पे 1000 में से किसी का टाई हो रहा है तो वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन देख रहे हैं, फिर ही इंटरव्यू पे कॉल आएगा. नहीं, वो फाइनल वाले के लिए करते हैं. एक्चुअली फाइनल वाले में करते हैं, फाइनल मेरिट के लिए होता है बस. क्लियर? सो नाउ think I have explained in fact all regarding this crash course. So I will be starting basically with, so every day there will be 2 lecture for G2 and G1 both. ठीक है. स्टार्ट अभी नेक्स्ट 2-3 वीक आप ऐसे मान के चलो, अभी ऐसे शेड्यूल रहना. एंड फ्यू जो प्री रिकॉर्डेड है वो साथ में अपलोड होते जाएंगे. तो यू ऑल विल हैव द एक्सेस फॉर द ऑनलाइन क्लास ऑल्सो एज वेल एज फॉर द live class as well. ठीक है. So I think I have explained all. So I will start with the G2 and with G2 with international economics. So start with international. So you can say international economics, and within that I will be including the BOP section as well. So international, if I say broadly, then it is divided into 2 parts. One section is all about theories of international trade, and the second section is balance of payment and foreign exchange market. Balance of payment and foreign exchange market. So divide it into 2 parts. Okay, these are the 2 sub-unit. So one part is basically the international theories of trade, and second part is balance of payment and the foreign exchange market. Now in this first category, theories of trade, you can again divide it into 2 parts. There are some old theories and new theories. Old theories and new theories. So we must understand what are the different old theories and why they are called old, and what are the new trade theories and what is new about that. Because there was a question in previous question mein, if you go by question number 26, just read that. What are the features based on which new trade theories are built that are distinctly different from the old theories? So they are not asking about any specific theory. They are just saying what are the difference between the old theories, on what principle old theories was based, and on what principle new theories were based. So what is common in all old theories and what is common in the new theories, and how that new theory is different from the old one.
So when we explain the old theories, remember when we explain any old theories include basically starting from the Ricardian model, HO model, standard rate model, specific factor model. All old theories assume that market is perfectly competitive. जितने भी old theories हैं उनका assumption क्या है? Market perfectly competitive है. And what are the assumptions of perfect competition itself? Perfect competition include that there will be large number of buyer and seller of the product. All product will be homogeneous. There will be free entry and exit. Therefore, price will always be equal to average cost in the long run. There will be no extra profit or abnormal profit. So there are certain features or assumptions of the perfect competition, and based upon that perfect competition, all old theories are based. Now, when we talk about the new theories assume that market is imperfectly competitive. But when I say market is imperfectly competitive, it means market may be characterized by monopolistic competition, or it could be characterized by oligopolistic competition. But मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली का फिर इंटरनेशनल ट्रेड के साथ क्या लिंक है, या मोनोपोली के साथ क्या लिंक है? Remember when we explain trade, so if there is trade between home and the foreign country or nation 1 or nation 2, if I say home country produces 2 product, cloth and food, foreign country also produces 2 product, cloth and food, but I have assumed that market is perfectly competitive. Market for what? Market of the product. तो अगर मैंने 2 प्रोडक्ट ले रखा है, एक क्लॉथ लिया और एक फूड लिया है, और कह रहा हूँ क्लॉथ के प्रोडक्ट में परफेक्ट कंपटीशन है, इसका मतलब क्लॉथ के लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होंगे एंड ऑल आर प्रोड्यूसिंग सेम क्लॉथ, ऑल आर प्रोड्यूसिंग सेम क्लॉथ. यहाँ पे भी क्लॉथ और फूड का के प्रोड्यूसर होंगे, बट अगेन दे आर प्रोड्यूसिंग सेम क्लॉथ. So here what will be the pattern of trade is that if home country is exporting cloth, in exchange home country will import food. Exporting cloth in which they have comparative advantage, importing food in which they have comparative disadvantage. This type of trade is called as the inter-industry trade. You are exporting cloth, importing food. But if I say that market for cloth is imperfectly competitive, then what will happen? Market for cloth is monopolistic in nature. तो क्लॉथ का मार्केट अगर मोनोपोलिस्टिक है, मतलब यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर तो हैं, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सेम क्लॉथ, दे आर प्रोड्यूसिंग स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. हियर अगेन क्लॉथ मार्केट में जो फॉरेन कंट्री है वहाँ भी मोनोपोलिस्टिक है, सो दे आर अगेन प्रोड्यूसिंग स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. सो नाउ इट इज पॉसिबल दैट होम कंट्री इज एक्सपोर्टिंग क्लॉथ एज वेल एज इम्पोर्टिंग क्लॉथ, बट इट इज नॉट द सेम क्लॉथ, it is differentiated product. Cloth for cloth, that type of trade is called intra-industry trade. So new trade theories will explain basically intra-industry trade. New trade theory will explain what is the role of economies of scale in the trade. Perfect competition assumes constant returns. Monopolistic competition and oligopoly does not assume constant returns. So if there is no constant returns, if there are increasing return, then what is the role of that increasing return in the international trade? That will be explained in the. So you can answer that question provided you know all the old theories and you know all the new theories. So just make a frame here. Starting from the theories of international trade and divide it into 2, old and new. Within old there are few theories. Majorly it will be starting with the comparative cost advantage theory. Comparative cost advantage theory associated with Ricardo and Haberler both. This model
assumes 2 by 2 by 1 approach. So when I say 2 by 2 by 1 approach, it means we will explain trade between two countries producing two products by using one factor of production, that is labor. Two countries producing two products by using one factor of production, that is labor. Two countries producing two products by using one factor of production, labor. So if there is only one factor of production, that is labor, then cost of any product will be explained in terms of labor. अगर किसी गुड को प्रोड्यूस करने में सिर्फ लेबर लग रहा है तो लेबर का जो कॉस्ट होगा वही डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट के कॉस्ट को. दैट इज नोन एज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम इट टेक टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम के लिए वर्कर को कितना वेज दिया जा रहा है, वो डिटरमाइन करेगा कॉस्ट को. तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज बेसिकली द कंसेप्ट गिवन बाय द रिकार्डो. हेबर्लर ने उसे इम्प्रूव किया है. एंड व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट बाय द हेबर्लर? वो कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करेंगे. मतलब कॉस्ट ऑफ वन गुड विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अदर गुड दैट यू हैव टू sacrifice in order to produce that extra unit of good. Suppose you want to produce one extra unit of cloth. So to produce one extra unit of cloth, you have to sacrifice some unit of food. Only by sacrificing some unit of food you can release the resource from there in order to produce one unit of cloth. But ये explicitly ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ लेबर रिलीज होगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो कॉस्ट का मतलब ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ other goods. So not necessarily now cost is expressed in terms of labor theory. तो एक minor difference, although popularly comparative cost advantage theory is known as Ricardian theory. बट एक क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली पूछा गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ. और ये दो क्वेश्चन दोनों ईयर में है. लास्ट ईयर के क्वेश्चन में होगा ये. इकोनॉमिक सर्विस के अंदर भी है, सिविल सर्विस में भी है. दिस क्वेश्चन नंबर 32. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ हेबर्लर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ रिकार्डो. ठीक है. अब ये क्वेश्चन ऑप्शनल के अंदर है और यू विल फाइंड आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन 6th. हाउ हैज हेबर्लर इम्प्रूव्ड अपॉन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ये क्वेश्चन आया यहाँ पे 2022 में और यहाँ पे क्वेश्चन था 2018 में. तो अगर कोई पास्ट ईयर दोनों के क्वेश्चन को कवर कर रहे हो सो यू विल हैव द एडवांटेज. और ये इंटरचेंज होकर के आ रहा होता है. कभी इकोनॉमिक सर्विस में पहले आ गया वो ऑप्शनल में रिपीट हो गया, कभी ऑप्शनल के अंदर आ गया वो इकोनॉमिक सर्विस में रिपीट हो गया. तो माइनर डिफरेंस बेसिकली है कि द कंसेप्ट गिवन बाय द रिकार्डियन वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. हेबर्लर इम्प्रूव टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी cost. We will explain that in detail, but first part is basically the Ricardian model. Then second is the HO model, Heckscher-Ohlin theory. That Heckscher-Ohlin theory is a 2 by 2 by 2 model. Trade between two countries producing two products by using two factor production. So what will change when there are two factor production? What will change when there are two factor production? The most important change will be that in the Ricardian model, production possibility curve will be a straight line. In the HO model, production possibility frontier will not be a straight line, it will become concave. So why it will become concave? And what will be the implication of that concave production possibility curve? Ricardian model के अंदर complete specialization होगा. Complete means a country is producing only cloth or only food. Only means PPF के corner point पे production होना है. You are using entire resource for only one purpose. और HO model में incomplete specialization. You are producing more of cloth but not only cloth.
और मोर ऑफ फूड बट नॉट ओनली फूड, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है. So why there is incomplete specialization in the HO model? Why the PPF is concave? We have to explain, and everything is arising because there are two factors of production here. So we will start with the one factor, then go with the two factor production. And there are various correlates of the HO model also. Factor price equalization theorem है, Leonti paradox है, Stokes-Emerson theorem. After that we will move to from HO model to a specific factor model. A specific factor model. A specific factor model is basically 2 by 2 by 3. That means now we will take 3 factor production, and out of that 3 factor production, suppose labor is one factor, capital is another factor, land is third factor. तो हमारे पास 3 फैक्टर प्रोडक्शन हो गए, एक लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया. 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है और क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस हो रहा है. क्लॉथ के प्रोडक्शन में लेबर और कैपिटल यूज़ हो रहा है, फूड के प्रोडक्शन में लेबर और लैंड यूज़ हो रहा है. टू प्रोड्यूस क्लॉथ वी नीड लेबर एंड capital, but to produce food we need labor and land. So capital is specific to cloth and land is specific to food. वो specific है मतलब fix है. Capital is not required here, land is not required here, so those factors are fixed. But labor is mobile factors. Labor can move from one factor, one industry to the other. So what will be the implication of that when trade will happen? What will be the impact on the relative price and what will be the impact on distribution of income? Who will be better off, who will be worse off, and on whose effect we cannot determine. So that is a major question in the specific factor model. So we start with one factor to 2 factor and then to 3 factor. Then another major theory is basically standard trade theory. Standard trade theory is basically making assumption of HO model. वो it follows HO model assumption, but it will explain the trade with the help of relative supply and relative demand. वो RS और RD approach से theory को explain करेगा. Relative supply and relative demand. And when you say relative supply and relative demand means what? What is the meaning of relative? जैसे हमने supply कब लिखा या demand कब लिखा, तो if you write the plot the demand curve, you will simply write price of the product and quantity of the product. तो अगर मुझे सिर्फ क्लॉथ का डिमांड बनाना है तो मैं लिखूँगा प्राइस ऑफ क्लॉथ, क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ, इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा. बट ऐसे में रिलेटिव डिमांड है वो. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव मीन्स इट इज क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ रिलेटिव टू क्वांटिटी ऑफ फूड. रेशियो प्लॉट करना है वहाँ पे. तो आई विल टेक price also relative, PC upon PF, relative price और relative demand की plotting है. And why we follow the relative? Remember I said standard trade model uses 2 by 2 by 2 model. Whenever you follow this type of approach 2 by 2 by 2, basically it is a general equilibrium model. ये general equilibrium model है जहाँ interdependency आ जाती है. और जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में अगर आपने माइक्रो कर रखा है, रिमेंबर इन द जनरल इक्विलिब्रियम वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट प्राइस, वी डिटरमाइन ओनली रिलेटिव प्राइस. तो रिलेटिव का इंपॉर्टेंस है ट्रेड के अंदर. रिलेटिव प्राइस ही मैटर करते हैं, एब्सोल्यूट प्राइस मैटर नहीं करते, बिकॉज वी आर फॉलोइंग बेसिकली दी जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो ये 4 मेजर थियरीज होंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ ओल्ड. ऑल विल अज्यूम perfect competition, all will assume perfect competition. Then when we explain the new trade theory, उसके अंदर सब कैटेगरी नहीं है, but that new trade theory will explain basically, you can divide it into 2 parts. We will explain here economies of scale. Economies of scale के basis पे explain होगा. Economies of scale can be internal or it could be external. So there could be internal economies of scale and
एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल में डिवाइड कर दीजिए. That new trade theory will basically explain the intra-industry and inter-industry trade based upon imperfect information. These are in fact different chapters in book. ये अलग अलग चैप्टर हैं. Ricardian model separate chapter, HO model separate chapter, specific factor model separate chapter है. So within that chapter there will be various things, other things. ठीक है. So we can start with the theories of trade with the comparative cost, advantage theory. But before that usually जब कभी आप इंटरनेशनल ट्रेड बिगिन करते हैं तो यू स्टार्ट बेसिकली विद द मेजर थियरीज. रिकार्डियन मॉडल है, बर्डलर मॉडल. और 17 में क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड. ठीक है, ये बुक में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जिसको यूजुअली स्टूडेंट नहीं पढ़ते. ठीक है, वो क्रुगमैन में भी इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर गिवन है. ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग ट्रेड on the basis of 2 factor or 1 factor or 3 factor. It is simply explaining that the trade between two countries depend upon the size of that economy and the distance between two countries. Larger will be the size, more will be the trade. Greater will be the distance between two countries, lesser will be the trade. But why, if two countries have greater size, size means in terms of GDP, why trade between China and US will be more? Why they trade more? Or why trade between India and China will be more? More GDP actually means what? More income. With more of income there will be more of spending. And when you are spending in an open economy, you are not spending only on the domestic good, you are spending also on the foreign goods. So your spending on foreign good will be more. So two countries having more GDP, the cumulative GDP matters. दोनों कंट्री का मिला करके, तो जो cumulative GDP अगर वो greater है, then there will be more trade between those two countries. And obviously distance से तो logical है कि अगर greater distance हो गया, transportation cost will be more, therefore it is expected to have less trade. But when we explain these type of theories, gravity model, empirically there are also justification. But trade relations are not only guided by economic principle. Trade relations are also sometimes guided by your diplomatic ties. अलग रिलेशन भी हो सकते हैं. तो empirically कभी कभी ये theorem गलत भी हो सकता है. Your trade between, by logic your trade between India and Bangladesh should be more, or India and Pakistan should be more, but the volume of trade is less. And volume of trade is more with the US, which is a distant country. So we have to explain the gravity model and point out the limitation of that gravity model. So we can start with, first of all, with the note on gravity model, then we can start with Ricardian. So first heading will be the gravity model of trade. Gravity model of trade. It basically say that if there is trade between two different countries, I can call this country I or country J, then the volume of trade between country I and country J will be, so equation के फॉर्म में लिखें, A is a constant term, yi is GDP of country I, yj is GDP of country J, and it varies inversely with, तो डिवाइड करके लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन कंट्री I एंड कंट्री J. सिम्बॉलिकली आप ग्रेविटी मॉडल को एक्सप्लेन इस इक्वेशन से कर सकते हैं. A is a constant number, yi and yj is GDP of country I and country J, and dij is basically distance between country I and country J. So it varies
directly with the size of the economies and inversely with the distance between the countries. Right in the first paragraph, the gravity model of trade, the gravity model of trade, the gravity model of trade relates trade between, relates the gravity model of trade relates trade between any two countries, trade between any two countries to the size of their economies, to the size of their economies, to the size of their economies, and also with distance between two economies, distance between two economies, distance between two economies. Full stop. There is a strong empirical relationship there is strong empirical relationship between size of countries' economies, size of countries' economies, and value of both its export and import, value of both its export and import, value of both its export and import. Next paragraph. Looking at the world trade as a whole, looking at the world trade as a whole, looking at world trade as a whole, economists have found an equation, economists have found an equation, economists have found an equation that predicts the value of trade between two countries, that predicts the value of trade between two countries, value of trade between two countries more accurately, more accurately. More accurately. Equation actually, equation is this: trade between two countries is equal to this. Next paragraph. Therefore, keeping other things constant, keeping other things constant, keeping other things constant, value of trade between two countries, value of trade between two countries, value of trade between two countries is proportional to, value of trade between two countries is proportional to product of, proportional to product of two countries GDP, two countries GDP, and it diminishes with, and it diminishes with, it diminishes with distance between countries, distance between countries. Next paragraph. The above equation is known as, the above equation is known as gravity model of trade,
The above equation is known as gravity model of trade. So, the reason for gravity model is similar to Newton's law of gravity. So just as gravitational attraction between any two objects, is proportional to product of their mass, and it diminishes with distance, Similarly, trade between two countries is proportional to product of their GDP, and it diminishes with their distance. Next paragraph. The reason for more trade between two large economies is that larger GDP indicate larger income, and with larger income there will be more spending. On foreign product. Next paragraph. This model have implication for emergence of regional blocks. Implication for emergence of regional blocks. Regional block like ASEAN, वो रीजनल ब्लॉक हो गए. तो वाई ट्रेड बिटवीन इन द रीजनल ब्लॉक इज मोर because of the distance factor. So it is basically supported by empirical evidence support that. So it has implication for that. However, trade is also determined by some other factors. Which are not covered in gravity model. In addition, it does not explain the reasoning.
It does not explain the reasoning behind trade, does not explain the reasoning behind trade in terms of comparative advantage. In terms of comparative advantage. That is a drawback of this model, that the model basically says that trade between these two countries will be more if they have more GDP. But actually we are more interested in knowing what? More interested in knowing which type of product this country will export and which type of product this country will import. वो पार्ट यहाँ से एक्सप्लेन, ये तो सिर्फ ओवरऑल एग्रीगेट बता रहा है आपको. इट इज़ नॉट अ in that way it is basically a drawback. It is not explaining the reason why trade arises actually. International trade के जितने भी theories होंगे they will highlight one or two reason why trade arises, why two countries trade. So what are the economic reason behind it? Why two countries trade? Which type of product they will export? Which type of product they will import? So what are the economic reason behind it? Those points has been elaborated more by the Ricardian model, explained well by the HO model, by the other models. So in that way, but it is overall basically a gravity model. That means trade, the overall volume of trade is determined by the size of economy. That is correct. Now when we explain the major one, starting with the Ricardian theory of trade. So first thing is about Ricardian theory is that it is a 2 by 2 by 1 model. So we are explaining trade between home country and foreign country. If you are referring पॉल क्रूगमैन बुक तो वहाँ होम कंट्री फॉरेन कंट्री रेफर हो रहा है, साल्वाटोर रेफर कर रहे हैं, नेशन 1 नेशन 2 लिखा हुआ है. दैट इज ओनली डिफरेंस. कंटेंट वाइज सिमिलर है. And they are producing two product. You can call it good 1, good 2, or you can name it. Suppose I say cheese and wine, जो क्रूगमैन में लिखा हुआ है, and that factor is labor. ठीक है, पहले कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट बाय यूजिंग लेबर आर द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो द ओरिजिनल रिकार्डियन मॉडल इज बेसिकली बेस्ड अपॉन लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. ये लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस्ड है. लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ चीज विल बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हाउ मच लेबर it takes to produce 1 unit of cheese. Cost of wine will be explained in terms of how much labor it takes to produce 1 unit of wine. So it is in that way labor theory of value. लेबर के टर्म में कॉस्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है. हेबरलर ने उसे इम्प्रूव किया कि कॉस्ट ऑफ चीज विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी यूनिट ऑफ वाइन दैट हैज टू बी sacrificed or foregone in order to produce 1 unit of cheese, and cost of wine will be expressed in terms of how many unit of cheese that has to be sacrificed in order to produce 1 unit of wine. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो हेबरलर ने ऐड किया और ऐड करके उसने रिकार्डियन मॉडल को इम्प्रूव कर दिया. बट पॉपुलरली इट इज रेफर्ड एज अ रिकार्डियन मॉडल, बट हेबरलर हैज इम्प्रूव्ड अपॉन द रिकार्डियन कंसेप्ट. द ओरिजिनल रिकार्डियन मॉडल इज बेस्ड अपॉन लेबर थ्योरी प्लस कुछ और असम्पशन भी यहाँ पे याद रखेंगे जो बाकी मॉडल में भी फॉलो होगा. We are explaining here trade between home and foreign country. So between home and foreign country goods can flow freely. Goods का flow होगा मतलब from home country cheese can be exported, wine can be imported, but labor cannot move from one country to, but labor can move from one industry to another industry. So within home country labor can move between cheese and wine, but home country labor cannot move from home country to the foreign country. So factors of production are perfectly mobile within a country but perfectly immobile between the countries. और वो assumption बाकी के मॉडल में भी रहेंगे. HO मॉडल के अंदर भी assumption रहेगा.
प्लस आई सेड परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कॉन्सेंट्रेटेंस टू स्केल होगा, प्रोडक्ट विल बी होमोजेनस इन नेचर. तो ऑल दिस assumption will follow. Now before writing that, just understand the few basic concept here. Before explaining trade, just focus on suppose home. अभी ट्रेड की बात नहीं, ट्रेड विल कम लेटर. इफ आई से दैट होम कंट्री हैज़, अब होम कंट्री के पास रिसोर्स क्या है प्रोड्यूस करने के लिए, हमने अजम्पशन क्या ले रखा है, फैक्टर तो एक ही है, चाहे चीज़ प्रोड्यूस करना हो या वाइन, उसके लिए प्रोडक्शन फैक्टर इज ओनली लेबर. तो सपोज इफ आई से दैट होम कंट्री हैज़ टोटल लेबर आवर ऑफ 2400, लेबर को इन टर्म्स ऑफ आवर लिख रहे हैं. इन दैट 2400 आवर होम कंट्री कैन प्रोड्यूस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चीज और हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाइन, हाउ इट कैन बी डिटरमाइन. टाइम अवेलेबल है, 2400 का टाइम अवेलेबल है, होम कंट्री इज एंडाउड विद दैट मच ऑफ रिसोर्स. इन दैट टाइम हाउ मेनी यूनिट ऑफ चीज कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन दैट कंट्री, कि एक घंटे में वो कितना प्रोड्यूस करते हैं या एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लेते हैं. दो तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखा हो सकता है, वो क्वेश्चन में भी होगा. आई विल शो दैट न्यूमेरिकल ऑल्सो. इफ आई से और राइट इट एज ALC, इसको रीड ऐसे करना, ये यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस चीज़ इन होम कंट्री. C प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं, चीज़ के लिए, L लेबर के लिए, और A डिनोट क्या है, यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट के लिए. यूनिट लेबर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस चीज़ इन होम कंट्री. सपोज इफ आई से इट इज़ 4 आवर, इसका मतलब इट विल टेक 4 आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज़ इन दी होम कंट्री. इट टेक्स 4 आवर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. सो इन 2400 आवर 600 यूनिट ऑफ चीज़ कैन बी प्रोड्यूस. ये कॉर्नर का पॉइंट 600 हो जाएगा. इंटायर टाइम अगर हमने चीज़ के प्रोडक्शन में लगाया है तो वाइन का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा और चीज़ का मैक्सिमाइज हो गया. तो ये कॉर्नर की वैल्यू कितनी हो गई, 6 का मतलब है एक्चुअल में हमने L/ALC लिखा है. L लेबर फोर्स हो गया, ALC से डिवाइड कर दिया, वो कॉर्नर की वैल्यू हमेशा वो लिखी जाएगी, L/ALC. इफ आई राइट ALW as 6 hour, it means what, to produce 1 unit of wine in home country requires 6 hours. So in 2400 hour 400. So what will be the value here, L/ALW. ठीक है, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कर देंगे. आफ्टर दैट जस्ट कनेक्ट with a straight line, and this line is production possibility frontier. I will explain why I have drawn it straight and what could be the equation of this line. इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, if you have to write down the equation similar to budget line. I said theories are basically based upon the micro principle. तो जस्ट लाइक कंज्यूमर का एक बजट होता है, एक इनकम होता है, उस इनकम से 2 गुड्स पे वो खर्च करता है, वैसे कंट्री के पास लेबर है, उसे वो 2 प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है. How to write down the equation of budget line? It is basically written as ALC into quantity of cheese plus ALW into quantity of wine less than equal to L. Less than means inside के पॉइंट हो जाएंगे, equal to on the line के पॉइंट्स हो जाएंगे. तो equation could be written in this way. It could be written in this way. Less than equal to L labor force. ठीक है. Now question is what will be the slope of that line? Slope of this production possibility frontier. It will be basically ALC upon ALW. अगर नंबर के टर्म में लिखे ना तो यहाँ पे हमने लिख रखा है 600 और यहाँ लिखा हुआ है 400, तो ये 400 अपॉन 600 हो जाएगा, मतलब 4/6, 2/3. तो 2/3 इज बेसिकली दिस नंबर ALC by ALW. माइनस साइन लिखोगे नेगेटिव साइन के लिए. तो दिस ALC अपॉन ALW इज व्हाट, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. इन दिस एग्जांपल इट विल बी कमिंग आउट टू बी 2/3. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस 2/3 इंडिकेट. बजट लाइन का स्लोप क्या इंडिकेट करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ व्हाट, 1 यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट विच इज रिटन ऑन द एक्स एक्सिस. तो ये जो 2/3 है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस
opportunity cost to produce cheese. 2/3 is nothing but opportunity cost of cheese. अब इसका significance या meaning जरा elaborate करो. What does it mean? If I say that opportunity cost to produce cheese is 2/3, it means what? To produce one extra unit of cheese, economy will have to give up 2/3 unit of wine. इसका मतलब ये हुआ. To produce one extra unit of cheese, economy will have to give up 2/3 unit of wine. नंबर से justify हो रहा है. To produce one extra unit of cheese, how much time is required? और 4 hour का alternate use क्या है? Alternate use है wine produce करेंगे, but 4 hour में how many unit can be produced? वाइन प्रोड्यूस करने में 6 आवर चाहिए, तो 4 आवर में कितना बनेगा? 2/3. टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ चीज यू नीड 4 आवर. इन दैट 4 आवर you can produce maximum 2/3 unit of wine. Now this is the opportunity cost. This 2/3 is a constant number. Constant means slope is constant. तो जब स्लोप कांस्टेंट होगा तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी. पीपीएफ स्ट्रेट लाइन बनेगा. रिकार्डन मॉडल का पीपीएफ स्ट्रेट लाइन बनता है बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज कांस्टेंट बिकॉज लेबर इज द ओनली फैक्टर प्रोडक्शन. लेबर इज द ओनली फैक्टर, सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन है. अब मैंने ALC अपॉन ALW कर लिया, इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चीज़ का आ गया. तो जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चीज़ का आया, इफ़ यू टेक द इनवर्स तो इट विल गिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वाइन. जिस तरीके से होम कंट्री का निकाला है वैसे फॉरेन कंट्री का निकाल लेंगे. तो अब मैंने होम कंट्री के लिए अगर निकाल दिया, सपोज इफ़ आई हैव कैलकुलेटेड फॉर होम कंट्री, ALC की वैल्यू ले ली और ALC बाय ALW की वैल्यू होगी. यहाँ से आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चीज़ का कैलकुलेट कर लिया 2/3. तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर चीज़. वैसे ही किसके लिए निकालेंगे? फॉरेन कंट्री के लिए. फॉरेन कंट्री में भी ALC बाय ALW होगा. वहाँ पे वैसे स्टार मार्क कर दिया मैंने. वो नंबर डिफरेंट होना है ऑब्वियसली, बिकॉज दोनों कंट्री में लेबर की प्रोडक्टिविटी सेम नहीं है. प्रोडक्टिविटी दोनों में डिफरेंट है, तो ये नंबर डिफरेंट आएगा. तो अब दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज़ इन होम. दिस इज अपॉर्चुनिटी. सपोज अगर ये नंबर आ रहा है 3/2, हाइपोथेटिकल एक नंबर ले लिया, इंटरचेंज कर दिया बस. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज़ इन होम कंट्री इज 2/3. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज़ इन फॉरेन कंट्री इज 3/2. Ricardian model say that a country will have comparative cost advantage in producing that product for which opportunity cost is less in that country as compared to the other country. तो चीज़ बनाने का comparative cost advantage किसके पास होगा? जिस कंट्री में चीज़ का opportunity cost कम होगा. तो अगर चीज़ का opportunity cost होम कंट्री में कम है तो होम कंट्री will produce चीज़. So what foreign country will produce then? और वाइन के लिए कैसे निकालेंगे फिर हम? सिंपल है. देखो, अगर ये नंबर है ना, द मोमेंट यू विल टेक इनवर्स, इनवर्स कर देंगे तो ये नंबर इधर आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा यहाँ 2/3. फिर ये वाला नंबर इधर ग्रेटर हो जाएगा. वो होना ही होना है. कोई भी एग्जांपल ले लो आप. सो इफ वन कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन, द अदर कंट्री विल नेसेसरली हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द अदर लाइन ऑफ प्रोडक्शन. ओनली देन ट्रेड कैन अकर. ट्रेड इज ऑलवेज म्यूचुअली बेनिफिशियल. Unless there will be no benefit for both the country, then trade cannot happen. And trade can happen only when opportunity costs are different. Cost different होगा तभी बनेगा ये. अब मैंने आपको भी ज़्यादा डिटेल नहीं बताया इसके बारे में, बट कैलकुलेट कर सकते हो अगर कोई वैल्यू गिवन हो तो. इस टाइप के नंबर अगर गिवन होंगे तो बन जाएगा. इन्फॉर्मेशन लेकिन थोड़ा केयरफुली रीड करना है बस. समटाइम्स इन्फॉर्मेशन विल से टू प्रोड्यूस 1 यूनिट हाउ मच टाइम इट टेक. जैसे यहाँ पे ALC और ALW क्या है? टू प्रोड्यूस 1 यूनिट 4 आवर. आवर में गिवन है. इफ़ आई से इन 1 आवर हाउ मेनी यूनिट कैन बी प्रोड्यूस, तो मतलब अलग हो जाएगा. 1 घंटे में कितना यूनिट बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं 1 यूनिट बनाने में कितने आवर लग रहे हैं. तो गिवन दैट, अब आप एक क्वेश्चन जरा यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ना. कह रहा है एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच कंप्लीट स्पेशलाइजेशन विल बी पॉसिबल फॉर 2 नेशन इन केस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज.
सपोज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लेबर फॉर टू नेशन इंडिया एंड यूके इज गिवन एज, इंडिया और यूके के लिए प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लेबर गिवन है। इंडिया में वीट और क्लॉथ और यूके का वीट और क्लॉथ, मतलब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है दिस इज फॉर इंडिया एंड दिस इज फॉर यूके। Will mutually beneficial trade be possible for the two nations? If yes, explain whether specialization shall be complete or not. अब पहली बात जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इज दिस नंबर ALC एंड ALW टाइप, वैसे नंबर है वो ALC और ALW है आवर में, और ये क्या गिवन है क्वांटिटी पर मैन आवर, एक घंटे में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है, तो इट इज़ नॉट द सेम नंबर। अब आसान तरीका होता है अगर इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन हो, सपोज इफ आई ड्रॉ फॉर इंडिया, सो फॉर इंडिया व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज, वीट और क्लॉथ में जो पहला इंफॉर्मेशन हो ना उसको आप एक्स एक्सेस पे लिखने की आदत डाल लो, ये वीट हो जाएगा और यहाँ क्लॉथ कर दिया, तो वीट की क्वांटिटी कितनी है 6 और इधर 4, कुछ नहीं करना, ये नंबर ही डायरेक्टली अपलोड कर दीजिएगा 4 और 6, ठीक है। अब बताओ स्लोप क्या हुआ, स्लोप क्या है इस लाइन का स्लोप, इंटरसेप्ट गिवन है 4 है और 6 लिखा हुआ है, 2/3 है ना, 4/6, स्लोप तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही रहेगा। आप इस नंबर पे मत देखो, इधर ये ALC ALW है ही नहीं है, अगर वो ALC ALW होता आवर में होता तो हम काम करते, वो तो हम डायरेक्टली क्या कर देते 6/4 कर देते, बट यहाँ पे क्या आ गया वो 4/6 हो जाएगा। तो व्हाट इज स्लोप हियर, यहाँ पे स्लोप आया 2/3, तो दैट 2/3 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर व्हाट, जो एक्स एक्सेस पे लिखा होगा, 2/3 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वीट इन इंडिया। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट इन यूके, यूके के लिए मार्क करेंगे तो ये 3 और 2 का इंटरसेप्ट आएगा, वहाँ भी स्लोप 2/3 हो जाएगा। अगर आप यूके के लिए इसको प्लॉट करोगे तो ये नंबर भी 2 और 3 आ जाएगा, इधर 2 आ गया इधर 3 आ गया, तो स्लोप तो यहाँ भी 2/3 हो गया, मतलब वीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों में, तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है तो ट्रेड विल नॉट हैपन, ट्रेड इज नॉट बेनिफिशियल, ट्रेड कैन हैपन बट ट्रेड इज नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लिया ये 14 में था, इंफॉर्मेशन पे से ध्यान दीजिएगा किस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, बट इन द पास यू फाइंड दिस वन क्वेश्चन, और इकोनॉमिक सर्विस वाले में आई थिंक यहाँ बताना इस क्वेश्चन में, ये 18 का सिमिलरिटी में सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि वाई बोथ क्वेश्चन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वहाँ पे एक क्वेश्चन आपने देख लिया पास में गिवन था, 14 का क्वेश्चन था, ये 18 का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन से बिना आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर गिवन है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, दैट इज इन 1 लेबर आवर हाउ मेनी आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस, अगेन आउटपुट है ये, आवर नहीं है। तो इंडिया के लिए गिवन है और बांग्लादेश के लिए गिवन है, अगेन फिर से आपको क्या कर देना है, प्लॉट कर दो, इंडिया के लिए बना लिया और बांग्लादेश के लिए बना लिया। जो पहला प्रोडक्ट है ये आप इंटरचेंज नहीं करना, ठीक है, कभी भी, मतलब बाय मिस्टेक ये नहीं कि आपने इधर पैडी लिया है और इधर वाले में आपने टेक्सटाइल लिख दिया, तो यहाँ भी पैडी रहेगा और यहाँ टेक्सटाइल रहेगा। को टोटल मैन आवर गिवन है नहीं आपके पास, सपोज कर लो कि दोनों कंट्री के पास 1 आवर है, तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, तो पैडी में 4 और उधर 8, इधर 4 लिख दीजिए और इधर 8 और 4 को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे 1 और 6, इधर 1 लेना है और इधर 6 लेना है, 6 और 1 स्ट्रेट लाइन से। तो व्हाट इज स्लोप हियर, स्लोप हो जाएगा 8/4, मतलब स्लोप हो गया 2 और यहाँ पे स्लोप 6 हो गया, एंड जो स्लोप है वो क्या मेजर कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर पैडी,
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर पैडी इज लेस इन इंडिया, सो इंडिया विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन पैडी। और उसका इन्वर्स करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और उधर 1/6 हो जाएगा, दैट नंबर विल बी लोअर। तो टेक्सटाइल विल बी इन टेक्सटाइल बांग्लादेश विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज। क्लियर? इसको आपको करना क्या, बस प्रेजेंट कर देना, मतलब वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेबल प्रिपेयर कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टेबल कहने का मतलब है इन दिस फॉर्म, जैसे उस क्वेश्चन को अगर आप बना रहे हैं तो विल जस्ट प्रिपेयर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल एंड यू हैव रिटन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर इन कंट्री, अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट लिख देना पैडी और टेक्सटाइल। यहाँ पे क्या नंबर आया था 2, तो टेक्सटाइल के लिए 1/2 हो जाएगा और इधर आया था 6, ये 1/6 हो गया। और कंपेयर कौन से नंबर को करना है, ये नहीं करना, प्रोडक्ट वाइज देखिएगा हमेशा, प्रोडक्ट वाइज देखना। यू हैव टू लुक द नंबर्स फॉर प्रोडक्ट वाइज। फॉर पैडी कहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, तो आपको कंपेयर करना 2 और 6 को। तो इंडिया हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन पैडी एंड बांग्लादेश हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेक्सटाइल। जस्ट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेनेशन फिर रिटर्न जो होगा उसको इस ऑर्डर में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ लिखे। comparative cost advantage theory has been formulated by Ricardo. Comparative cost advantage theory has been formulated by Ricardo. So this model of international trade is also referred as 2/2/1 model. Is also referred as 2/2/1 model. Full stop. According to this theory, a country has comparative advantage in producing a good. A country has comparative advantage in producing a good if opportunity cost of producing that good in terms of other good, opportunity cost of producing that good in terms of other good is lower in that country, as compared to other country. This approach in which international trade is arising due to difference in productivity of labor is known as the Ricardian model of international trade.
Next paragraph. A Ricardian model is based on following assumptions. Number one, only two nation and two commodities. Second, perfect mobility of labor. Within a country, but perfect immobility between the countries. Third, trade is completely free, मतलब कोई restriction नहीं है trade पे. Trade is completely free. Third assumption, trade is completely free. Fourth, constant cost of production. Fifth, no transportation cost and no technical change. And last one, is most important one, is labor theory of value. Just briefly explain that last one, labor theory of value. It means, elaborate this meaning. It means value or price of a commodity depends exclusively on the amount of labor goes to produce that commodities. मतलब how much time it takes to produce that commodity. Amount of labor goes to produce that commodity. This implies that either labor is only factor production, or labor is only factor used in same fixed proportion, labor is used in same fixed proportion in all commodity. Also, labor is homogeneous. Next paragraph में Haberler improved upon a Ricardian model. Haberler, H-A-B-E. Haberler improved upon a Ricardian model to explain the theory of comparative advantage.
in terms of opportunity cost, in terms of opportunity cost, full stop. In this form, the law of comparative advantages, the law of comparative advantages, sometimes referred as law of comparative advantages, sometimes referred as law of comparative cost, law of comparative cost. नेक्स्ट पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, द कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटीज, द कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटीज, cost of a commodity is the amount of second commodity, cost of a commodity is the amount of second commodity that must be given up, that must be given up to release just enough resource, to release just enough resource to produce, just enough resource to produce one additional unit of the first commodity, one additional unit of the first commodity. In this, no assumption is made that labor is the only factor of production. Labor is the only factor of production. हेबर्लर ने ये नहीं कहा कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और भी फैक्टर हो सकते हैं. लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और दैट लेबर इज होमोजेनस, or that labor is homogeneous. ठीक है, तो हेबर्लर ने ये एक्चुअल में इंप्रूवमेंट किया. हेबर्लर के कंसेप्ट में लेबर का ओनली फैक्टर प्रोडक्शन होना जरूरी नहीं है. नाउ जस्ट एक बेसिक पॉइंट यहाँ समझिएगा बिफोर एक्सप्लेनिंग द ट्रेड. इफ आई गो बाय द रिकार्डियन कंसेप्ट, और होम कंट्री का ही डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ, तो होम कंट्री, if home country has labor as a resource, the question is, labor is free to move in the home country. It can't move from home to foreign, but it can move from cheese to. So question is, in which line of production labor will work or labor will go. Labor is free to move, उसकी मोबिलिटी तो परफेक्ट है, तो लेबर एक्चुअल में किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा होगा, जिस इंडस्ट्री में उसे ग्रेटर वेज मिलेगा. सो नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट डिटरमाइन वेज इन द चीज एंड व्हाट डिटरमाइन वेज इन द वाइन. वेजेस आर डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी. वी आर अज्यूमिंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट? इट इज price multiplied by marginal product of labor in cheese. आप बताओगे what is marginal product of labor in cheese? If I say ALC is 4 hour, so what is marginal product? I said ALC is 4 hour. It means what? To produce one unit, it take 4 hours. And when I say marginal product of labor, it means in 1 hour you can produce how many unit? वो marginal product का मतलब होगा. ALC तो 4 आवर है, एक यूनिट बनाने में 4 आवर चाहिए, बट एक घंटे में कितना यूनिट बनेगा फिर? तो 1/4. सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट 1/1 ALC. ठीक है, सो दिस इज प्राइस ऑफ चीज इनटू 1/ALC. इसको सिंपली कह दें तो ये PC/ALC हो गया.
दिस इज पीसी अपॉन एएलसी, क्लियर है। वर्कर का वेज चीज में क्या मिलना है, पीसी बाई एलसी नथिंग बट व्हाट, वीएमपी, एंड वीएमपी इज इक्वल टू वेज। तो वर्कर को जो वेज मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, पीसी बाई एएलसी। सिमिलरली वाइन में क्या मिलना है, वो भी वही रहेगा वीएमपी, यहाँ पे आ जाएगा पी डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू। अब यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ नोट कर ले, नंबर 1, if PC by ALC is greater than PW by ALW, उस कंडीशन में क्या होना है, मैंने एक कंडीशन लिखा है यहाँ पे, PC by ALC एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज PC by ALC, वेज या चीज़ में, विच इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द अल्टरनेट नंबर, मतलब वर्कर इज गेटिंग हायर वेज इन, all worker will go to cheese, country will produce only cheese। सेम कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ ऑल्टरनेट, PC by PW is greater than ALC by ALW, in that case country will produce only cheese। ये कंडीशन क्लियर है। इसी सिचुएशन को हमने ऑल्टरनेट तरीके से लिखा बस। But what is the meaning of PC by PW and what is ALC by LW? What is that ALC upon ALW? ALC by LW is opportunity cost, वही तो opportunity cost है। And what is PC by PW? Relative price। तो if relative price of cheese is greater than opportunity cost of producing cheese, then country will produce only cheese। country सिर्फ चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जब चीज़ का रिलेटिव प्राइस चीज़ के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा, प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा मिले तो आप वही प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें, यू विल प्रोड्यूस ओनली दैट कमोडिटी। फर्स्ट अगर याद है तो रिमेनिंग बेस क्लियर है। फिर व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस, अगर PC अपॉन PW लेस देन ALC बाय ALW, इन दैट केस कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली वाइन। तो व्हेन कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स, जब इक्वल होंगे। कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स ओनली व्हेन दे आर इक्वल, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, इफ देयर इज नो ट्रेड, इफ आई एम आस्किंग ऑफ अबाउट ऑटर्की कंडीशन, व्हाट इज ऑटर्की, ऑटर्की इज कंट्री इन आइसोलेशन, मतलब विदाउट ट्रेड, ट्रेड नहीं हो रहा है अभी। ट्रेड अगर होगा तो ये पॉसिबल है कि हमने ओनली चीज़ बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया, उसके बदले वाइन बाई कर लिया, ये तभी होगा जब ट्रेड हो रहा है। ट्रेड नहीं हो रहा है तो यू हैव टू प्रोड्यूस बोथ गुड्स, एंड बोथ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली व्हेन PC बाई PW इक्वल टू ALC बाई LW होगा। तो जो ऑटर्की प्राइस होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, ALC बाई LW के बराबर होगा। ऑटर्की प्राइस विल ऑल्सो बी ऑलवेज बी इक्वल टू ALC बाई LW। मतलब होम कंट्री का ऑटर्की प्राइस ये हो जाएगा, फॉरेन कंट्री का ऑटर्की प्राइस वो भी ALC बाई LW के बराबर होगा। बट क्या ये ALC बाई LW दोनों कंट्री का सेम है, यही तो फ़र्क है। तो जब फ़र्क हो गया इसका मतलब बिफोर ट्रेड दोनों कंट्री के प्राइस भी अलग होंगे, प्राइसेस डिफरेंट होते हैं तभी तो ट्रेड होता है। इंडिया का प्राइस और चाइना का प्राइस अगर सेम ही होगा तो ट्रेड नहीं होगा, प्राइस तभी हो रहा है जब ट्रेड प्राइसेस डिफरेंट है। ट्रेड अराइजेज बिकॉज prices are different, but prices are different because opportunity costs are different, and opportunity costs are different because labor productivity is different. So labor productivity theory actually में Ricardian model say that two countries trade because they differ in terms of productivity। वो अपनी लेबर की प्रोडक्टिविटी कंट्रीज की अलग अलग होती है, बिकॉज ऑफ दैट टू कंट्रीज ट्रेड, बिकॉज प्रोडक्टिविटी आर डिफरेंट, कॉस्ट आर डिफरेंट, सो प्राइसेस आर डिफरेंट, देयरफॉर ट्रेड अराइजेस। इसी को इलेबोरेट किया जाता है। इनका क्वेश्चन के फॉर्मेट में आएगा तो एक क्वेश्चन तो हाइपरलर का इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, सेकंड इसका इलेबोरेशन होगा रिकार्डियन मॉडल के अंदर। एक न्यूमेरिकल वाला अगर क्वेश्चन है जैसे भी क्या है तो उसमें आपको फिर इलेबोरेट ही नहीं करना चाहता, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल, जैसे ये बनाया
और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बेसिकली गो बाय द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते जाओगे। सो देयर आर वेरियस सब पार्ट्स ऑफ द रिकार्डियन मॉडल एंड देन वी विल गो टू दी एचओ मॉडल। क्वेश्चन आपको मैंने रेफरेंस के लिए दोनों दिखाए। इसका एक न्यूमेरिकल अभी तक जो आ रखा था वो कर लिया, इसका जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये था, ये दोनों आपने कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपको कंटिन्यूटी में एक्चुअल में वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल, ये हमारा कोर है, ये सिलेबस है इनिशियल फ्यू लेक्चर्स के लिए। सो वी आर हियर बेसिकली रिकार्डियन मॉडल, सो वी विल कंप्लीट दिस टुमारो एंड वी विल स्टार्ट विद द एचओ मॉडल। एचओ मॉडल विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू द रिकार्डियन मॉडल, ठीक है। रेफरेंस के लिए यू कैन रेफर आइदर डोमिनिक सैल्वाटोर और पॉल क्रुगमैन। सैल्वाटोर इज प्रेफर्ड रीडिंग फॉर बीओपी सेक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैक्रो के लिए। थ्योरीज प्रेफरेबली इफ यू गो बाय पॉल क्रुगमैन। अगर सैल्वाटोर एक सिंगल बुक रेफर करना है देन गो बाय द सैल्वाटोर, ठीक है। यहाँ पे मैं होम ऑफ फॉरेन लिख रहा हूँ, वहाँ पे वो नेशन 1 नेशन 2 लिखा होगा, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। रेस्ट कंसेप्ट सेम है, थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। तो फॉर थ्योरीज बेटर टू गो सैल्वाटोर और क्रुगमैन, जो भी आपके ऊपर चॉइस है। जो स्टडी मटेरियल यहाँ से आपको मिल रहा होता है उसके अंदर पॉल क्रुगमैन के चैप्टर्स हैं। सो इफ यू हैव द सैल्वाटोर यू कैन रीड इट। तो विल कंटिन्यू विथ रिकार्डियन, विल फिनिश इट एंड देन एचओ मॉडल। सर एक प्रॉपर जो केसेस है लास्ट 50 ये रिकॉर्डर में बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी ये पूरा इलाबोरेशन होना है ना इसका। हाँ ये होगा इसका। फिर ये तो पॉसिबिलिटी हमने लिखी, इफ लगा रखा है अभी तीनों कंडीशन में। एक्चुअल कंडीशन विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव सप्लाई रिलेटिव डिमांड, विच कंट्री विल ट्रेड विच प्रोडक्ट।